Assalamu alaikum. In today's video lecture, we are going to discuss a very famous poem by a very famous poet, John Donne. Now, John Donne was Elizabethan, and he also wrote in times after Queen Elizabeth. This is something very much important, and John Donne's poetry is described some in some terms which were not used for the poetry before John Donne. Earlier, poetry was a straightforward affair, and it involved a lot of tradition. When I say it involved a lot of tradition, it doesn't mean that John Donne's poetry does not follow the tradition. Uh, T.S. Eliot actually wrote a whole essay to show that Donne was aware of all the tradition, poetic tradition before him, and he used that tradition. However, he was an individual poet, and he was a talented personality. Through his individuality and through his talent, he added a lot to that tradition. This is something very much important. And when we are approaching when we are approaching Donne's poetry, we should keep these things in mind. When Donne was dubbed as a metaphysical poet in some derogatory terms, it was something insulting, which he was blamed of. Actually, the term metaphysical was used in a derogatory sense. The poem we are going to discuss today, it has all the qualities for which Donne and his followers were criticized. Uh, it is erotic. It involves feelings about love which were not acceptable, especially at the time when Donne was writing his poetry. And of course, Donne's ideas are somewhat disturbing in our own societies, especially conservative societies. तो हम इसे थोड़ा सा ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ जो है वो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं. तो ये चीज जो है वो जहन में रखने वाली है. फिर उसके बाद जो है वो आर्गुमेंटेटिव है. दलाइल से जो है वो बात चलती है. साइंस का बहुत ज्यादा जो है वो यूज है. मॉडर्न जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं वो दे फाइंड अ significant very significant place in Donne's argumentation. Imagery, of course, different है from the imagery used by Elizabethan poets or the poets who wrote before Elizabethan poets. तो वो imagery भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो different किस्म की जो है वो यहाँ पे आपको नजर आती है. इसके अलावा of course shocking and stunning तो होगी कि Donne was talking about though he was talking about the old things, but he was talking about those things in a new way. uh, Students, if I go on talking about this poem the way I am doing right now, it will become very lengthy. So my purpose here is to present literature in a form where it could be understood easily, and students can find it easy to write an essay based on the arguments जो यहाँ पे जो है वो मैं एक जो है वो एक्सप्लेनेशन पेश करता हूँ. तो इस एक्सप्लेनेशन को हम जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो देखते हैं. लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, इफ यू थिंक that this kind of video lectures can help you to understand literature in any way, you should subscribe to this channel, because your subscription, again I will say, is a source of motivation for teachers like us
and if they have more subscriptions and they are being watched more, so they work harder, and when they are working harder, students are getting more quality things from them. तो दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसलिए आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है, तो आप इसे जो है वो सब्सक्राइब करें। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। आज की हम पोएम जो है वो देखते हैं कि इस पोएम में है क्या। तो जो पोएम आज हम जो है वो डिस्क्राइब, जिस पोएम पे हम बात करने जा रहे हैं वो फ्ली है, द फ्ली। बड़ी मशहूर जो है वो पोएम है। मुख्तलिफ रेफरेंसेस जो है वो डन की पोइट्री को जब भी आपने एवेल्यूएट करना होता है तो आप इस पोएम को जो है वो देखते हैं। इस पोएम से जो है वो रेफरेंसेस कोट करते हैं और इस पोएम को आप यूज़ करते हैं एज as a source to see the different qualities present in Donne's poetry। तो ये फ्ली आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर एक छोटी सी एक पिस्सू जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, ये इस तरह का एक छोटी सी क्रिएचर होती है। तो डन ने इसको लेके अपने जो रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप की जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं उनको बयान किया है। अब जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ है। ये फर्स्ट लाइन देखें, मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस। अब स्पीकर जो है वो इस पोएम में वो अपनी मिस्ट्रेस से जो है वो बात कर। अब ये मिस्ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी काफी किस्म का इन्वॉल्व था और ये बहुत ज्यादा जो है वो एरोटिक था। वो से कहता है कि इस मक्खी को देखो और इस मक्खी में देखो, यानी इस ये पिस्सू नमा ये जो क्रीचर है इसको देखो और इसमें देखो। हाउ लिटिल दैट विच द डिनाइस्ट मी इज, के आई एम। अच्छा, अब स्पीकर जो है वो ही इज डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, दो इट हैज नॉट बीन स्टेटेड एक्सप्लिसिटली व्हाट ही वाज डिमांडिंग, लेकिन इट कैन बी अंडरस्टूड what was his डिमांड। वो क्या चाह रहा था अपनी मिस्ट्रेस से, कि जो तुम मुझे जो है वो थोड़ी सी चीज जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ, जिससे तुम जो है वो मुझे इनकार कर रहे हो, वो इस मक्खी में मौजूद है, इस पिस्सू में जो है वो मौजूद है। इट सेग्ड मी फर्स्ट। कैसे? अब आर्गुमेंट जो है वो देखें किस तरह से डेवलप होता है, और ये आर्गुमेंट यही जो है वो डन की पोइट्री की बहुत बड़ी जो है वो क्वालिटी है। कहता है इसने पहले जो मेरा खून चूसा एंड नाउ सक्स दी, और अब जो है वो तुमको जो है वो चूस रहा है। एंड इन दिस फ्ली अवर टू ब्लड्स मिंगल्ड भी, और यहाँ पे आके हमारे दोनों के खून जो है वो आपस में मिल गए हैं। द नोअस्ट दैट दिस कैन नॉट बी सेड अ सिन नॉर शेम नॉर लॉस ऑफ मेडनहुड। अच्छा, अब कहता है कि तुम दो नॉवेस्ट, अब आपको पता है कि इस ये सिचुएशन, इस सूरत हाल को ना तो गुनाह कहा जा सकता है, ना जो है वो किसी किस्म की शर्म इसमें है, और ना ही इसमें वर्जिनिटी का कोई जो है वो लॉस है। ये नहीं है कि तुम्हारी मेडनहुड जो है वो चली गई है हमारे ब्लड जो है वो आपस में मिलने से। तो ये मिंगलिंग ऑफ ब्लड्स इज समथिंग इनसिग्निफिकेंट, and Dan is driving at this idea. We can very easily understand that he is trying to convince his mistress that their relationship in which they will meet physically is not something a sin. It does not involve any sort of shame, and it will not result in the loss of maidenhood in any sense। अब वो आर्गुमेंट को किस तरह से जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो पेश कर रहे हैं। आर्गुमेंट वही है कि अगर ये जो है वो एक फ्ली में आपस में मिल सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन रियल लाइफ। एक्चुअली ये एक बड़ा एरोटिक किस्म की जो है वो बात है, आउट ऑफ मोरालिटी है, एक्सेप्टेड मोरालिटी इसमें जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, येट दिस एंजॉयज बिफोर इट वू, यानी ये तो पहले जो है हो चुका है। एंड पैम्पर्ड स्वेल्स विद वन ब्लड मेड ऑफ टू, और उस जो ब्लड है दो लोगों का, यानी स्पीकर का और उसकी बिलव्ड का, उसकी वजह से जो है ये फूल गई है।
और फूल जो है ना, आप समझ सकते हैं कि ये भी समथिंग वेरी मच एरोटिक अलूजन है कि कब जो है वो जो वुमेन स्पेशली जो है वो दे स्टार्ट गेनिंग वेट, उनको जो है कब वेट जो है वो मिलना शुरू, एंड दिस अलास इज मोर देन वी वुड डू, और ये शायद उससे ज्यादा हो गया है जो कुछ हम जो है वो करेंगे। तो आप इस आर्ग्यूमेंट को सारे के सारे को जो है वो जहन में रख सकते हैं, और यही चीजें हैं जो डन की पोइट्री की जो है वो क्वालिटीज हैं। देखें कि किस तरह से ये कोलोक्वल है, ऐसे जब अ पर्सन इज स्पीकिंग टू अनदर पर्सन, एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे से जो है वो बात कर, और ये ट्रेडिशन नहीं थी उस डन से पहले जो है वो इस तरह से पोइट्री लिखने की, इसे मोर पर्सनल लेवल पे लेके नहीं जाया जाता था। आगे देखते हैं। अच्छा, अब जब ये डन ने जो है वो ऑफ कोर्स ही पॉइंटेड आउट दीज थिंग्स, हिज बिलव्ड और हिज मिस्ट्रेस व्हाटएवर यू कॉल हर, वो शी माइट बी थिंकिंग ऑफ किलिंग दैट फ्ली, वो उसको मारने की जो है वो कोशिश कर रही है। ओ स्टे, देयर लिव्स इन वन फ्ली स्पेयर, कहते हैं इसे छोड़ दो, वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो हमारी शादी हो गई है। अब ये बड़ा स्टनिंग एंड शॉकिंग किस्म की चीज है, जिसको जो है वो एक्सेप्टेड मोरालिटी ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। दिस फ्ली इज यू एंड आई, कहते ये जो पिस्सू है, मक्खी, वट एवर यू कॉल इट, कहते ये मैं और तुम जो है वो दोनों बन गए हैं, एंड दिस अवर मैरिज बेड, और ये हमारी शादी का जो है बिस्तर बन गई, एंड मैरिज टेम्पल इज, और वो शादी जो है वो समथिंग वेरी सैक्रेड किस्म का, बड़ा मुकद्दस किस्म का रिलेशनशिप है। तो ये सब कुछ जो है वो इट हैज बीन अचीव्ड इन दिस फ्ली, तो इसे मारना तो सही नहीं है। दो पेरेंट्स ग्रज, यानी अगरचे ये बात जो है वो वालदैन, एंड यू वी आर मेट, हम दोनों जो है वो आपस में मिल गए, यानी हमारे बड़े इस बात को जो है पसंद नहीं करेंगे लेकिन हम आपस में मिल गए। एंड क्लस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट, हम यानी यहाँ पे जो है इस मक्खी के अंदर, इसके जिस्म में जाके जो है वो हमारे ब्लड आपस में जो मिले, तो इस तरह से हम भी मिल गए। दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, अब अगर कहते कि तुमने किया तो ये तुम फिर मुझे भी मारोगी। लेट नॉट दैट सेल्फ मर्डर्ड एडेड बी, और फिर यही नहीं है कि एक तरफ तो तुम जो है उस मक्खी या उस पीसू को मारोगे, दूसरा जो है वो मुझे मारोगी, एंड तीसरा जो है इट विल इन्वॉल्व अ सॉर्ट ऑफ सुसाइड, यू विल बी किलिंग योर सेल्फ। तो इसको जो है वो डन लास्ट लाइन में जो है वो सैक्रिलेज है कहता है, समथिंग जो मुकद्दस नहीं है, समथिंग जो नापाक है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है, किलिंग सम अदर क्रीचर, फिर जो है वो किलिंग सम अदर ह्यूमन बीइंग, एंड परहैप्स द ग्रेटर सिन इज किलिंग किलिंग वंस ओन सेल्फ, यानी खुदकशी करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। अब ये आर्ग्यूमेंट को देखो जो है वो किस तरह से जो है वो डन डेवलप कर रहा है, और ये हमारी अक्ल या इस्तदलाल पे जो है वो किस तरह से पूरा उतरता है। इट इज समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट इज द आर्ग्यूमेंट इज वेरी मच जो है वो कन्विंसिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है मेटाफिजिकल पोइट्री की और डन की जो है वो पोइट्री की। लास्ट स्टैंजा जो है वो देखें, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टैंजा वंस अगेन, बिकॉज द आर्ग्यूमेंट started in first stanza and then developed in the second stanza, goes on in the third stanza as well. अब शायद जो है वो सीन ये है कि द मिस्ट्रेस हैज किल्ड दैट फ्ली, उसने उस मक्खी को जो है वो मार दिया, क्रूअल एंड सडन, उसे क्रूअल एंड सडन जो है वो बोला। हैज दो सिंस पर्पल्ड दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, यानी तुमने एक मासूम मखलूक को जो है वो मारा है, उसका कोई कसूर ना था। वेयर एंड कुड दिस फ्लाई गिल्टी बी, मक्खी का क्या, इस पिस्सू या इस मक्खी का जो है वो क्या कसूर था, दैट यू किल्ड इट, कि तुमने जैसे मार दिया, एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी, इसने सिर्फ इसका कसूर इतना सा था कि इसने तुम्हारा जो है वो खून का एक कतरा जो है वो चूसा। एंड यट दो ट्रायम्फस्ट एंड सेयस दैट दाउ फाइंडस्ट नॉट thyself, यानी तुम तो नहीं थी ना उसमें, पूरी का पूरा जो है वो शामिल नहीं था। ये हियर इज व्हाट वी कॉल्ड सम सॉर्ट ऑफ एम्बिगुइटी, एक थोड़ा सा मुश्किल लेवल पे जो है वो डन जो है वो अपने आर्गुमेंट को ले जाता है, और इसको समझना जो है थोड़ा सा यहाँ पे आते जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये भी मेटाफिजिकल पोइट्री की एक जो है वो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। नॉर मी द वीकर ना, अब क्या है कि इससे मुझे तो कोई कमजोरी नहीं हुई है,
कोई नुकसान नहीं हुआ इस खून का एक कतरा चूसे। इज ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी। अगर ये सही है तो फिर देखो कि तुम्हारे खौफ जो है वो तुम्हारा व्हाट आई एम डिमांडिंग फ्रॉम यू एंड यू आर डिनाइंग टू मी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फियर। अब अगर इस पिस्सू को देख के, इस मक्खी को देख के जो है वो वी कैन कंक्लूड, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड दैट द फियर डज नॉट हैव एनी सॉलिड फाउंडेशन। उसकी कोई फाउंडेशन जो है वो सॉलिड किस्म की नहीं है। तो जब जो है वो ये इस फियर की कोई जो है वो अहमियत नहीं है। जस्ट सो मच ऑनर, यानी ये तो इज्जत वाली बात है, वन दो इल्डर्स टू मी, अगर जो है वो तुम मुझे वो दे दो जो मैं जो है वो डिमांड कर रहा हूँ। अब बाय नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट डन वाज डिमांडिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड और हिज मिस्ट्रेस। उस वो किस चीज का जो है वो तकाजा कर रहा था, ये आप जो है वो इजीली इसको जो है वो देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें वो सारी की सारी जो क्वालिटीज, जो मेटाफिजिकल पोएट्री की क्वालिटी, वो सारी की सारी आपको जो है एरोटिक है, आर्गुमेंटेटिव है, और समटाइम जो है फनी विट का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नजर जो है रिडिकुलस किस्म की सिचुएशन भी जो है वो नजर जो है वो आती है। विल वेस एज दिस फ्लाई डेथ टुक लाइफ फ्रॉम मी। अब यहाँ पे इस लाइन के साथ जो है वो डन अपनी इस पोएम को जो है वो कंक्लूड करता है। तो स्टूडेंट्स, डन बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसकी पोइट्री को समझना, देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज पोइट्री because of different reasons. But now it is not difficult to understand because society has evolved. People have started talking about things in a more open and more frank way. लेकिन डन जिस तरह से जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो है वो डिपिक्शन करता है, और ह्यूमन रिलेशनशिप को जिस तरह से जो है वो एक नए लेवल पे लेके जाना चाहता है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और हम इन वीडियो लेक्चर्स में उन पे जो है वो बार बार जो है वो बात करेंगे कि वो कौन से लेवल्स हैं और वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्री में पाई जाती हैं। ताकि अगर आप ऑफ कोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो बहुत कुछ बता दूंगा इसकी। from there you can get a sort of what you call a complete essay, जिसे जो है वो आप पढ़ सकते हैं, and you can develop your own essays in detail when you are writing about this poem and when you are writing about poetry in general sense. Students, once more I will say the same thing. If you think that this kind of video lectures are useful for you, kindly subscribe this channel on YouTube. Allah Hafiz.